Hello everyone. Today I am going to record lecture number 3 of Power System Analysis course. The title of our lecture is Introduction. In the next slide we will see the contents of today's lecture. In the contents, first of all, we will study about the per unit quantities. We will study about per unit quantities from the textbook of Stevenson, Greninger, and also from a reference book given in the last slide of references. uh, Glover book, the author name is Glover. There are 3 authors, so we will follow also this book for more detailed explanation of about per unit quantities. In the second slot we will study about single or one line diagram representation. So what are the per unit quantities and how we can represent different parameters values by per unit quantities instead of their actual values. Power transmission lines are operated at voltage levels where the kilovolt is the most convenient unit to express voltage. Okay, this is represented by V. Volt is the smallest unit while kilovolt is the largest unit. और इस तरह एक क्वेश्चन आपसे आगे टेस्ट वगैरह में भी बार बार शायद आपके सामने आ जाएं कि व्हाट इज़ द हाईएस्ट वोल्टेज लेवल इन पाकिस्तान, which is so far 500 kilovolt. So we represent higher voltages by kilo or mega, लेकिन ये लेवल अब बढ़ जाएगी. एक लाइन अंडर कंस्ट्रक्शन है HVDC, वो शायद मोर देन 500 kV तक पहुंच जाएगी. So because of the large amount of power transmitted, kilowatts or megawatts and kilovolt amperes or megavolt amperes are the common terms. ठीक है, यहाँ पे हम पावर की बात कर रहे हैं. तो पावर को मैंने आपको बताया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पावर्स. वन इज पी, जिसको हम वाट्स के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट. और इसका लार्जेस्ट यूनिट क्या है, ग्रेटर यूनिट क्या है, किलोवाट्स और मेगावाट्स. ठीक है. सिमिलरली उसके बाद हमने देखा था एस वाज द कॉम्प्लेक्स पावर और उसकी यूनिट क्या थी, वोल्ट एम्पेयर्स या किलो वोल्ट एम्पेयर जिसको, या मेगा वोल्ट एम्पेयर्स जिसको यहाँ पे कहा गया है. उसके अलावा रिएक्टिव पावर है, लेकिन पर यूनिट क्वांटिटीज में हम रिएक्टिव पे नहीं जाएंगे. कॉम्प्लेक्स या टोटल या एपरेंट पावर इसको कहते हैं, जिसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर रहेंगे. क्योंकि अगर ये हमें इसका पता चल जाए तो हम बाकी कैलकुलेट कर सकते हैं. However, these quantities as well as amperes, यानी करंट की बात हो रही है, एंड ओम्स रेजिस्टेंस या इम्पिडेंस की बात हो रही है, जेड की बात हो रही है, आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इज अ परसेंट or per unit of a base value or a reference value specified for each one of them. ठीक है. तो यहाँ पे 3-4 चीज़ों की बात हो गई. फर्स्ट ऑफ ऑल पावर की बात हो गई, ठीक है, पी की, फिर इसकी भी बात हुई, फिर करंट की बात हुई, पहले वोल्टेज की बात हुई थी, ठीक है, वी, एंड देन इम्पिडेंस की बात हुई. सो ऑल दीज पैरामीटर्स, जब हम प्रॉब्लम की सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, एनालिसिस की तरफ जाएंगे पावर सिस्टम की एनालिसिस में, तो हम इन सारे पैरामीटर्स को इंस्टेड ऑफ देयर एक्चुअल वैल्यूज जिनका हमें पता है इनकी यूनिट्स का, उसके बजाय हम इसको उनको कन्वर्ट करेंगे बेस वैल्यूज के अंदर फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पसेस. For instance, if a base voltage of 120 kilovolt is chosen, voltages of 108 kilovolt डिवाइड बाई 120 यानी कि 3 वोल्टेज लेवल्स हैं हमारे पास. 108, 120
120, 120 and 126. So we have actual values of the voltages. ये तीन वोल्टेजेस हैं, वो कहते हैं कि आप इनको किलो 120 किलो वोल्ट के बेस में कन्वर्ट कर लें तो होगा क्या, बेस का हमें पता चल गया या रेफरेंस वैल्यू बेस वैल्यू का, तो वी विल डिवाइड ईच वन ऑफ देम बाय द बेस वैल्यू और रेफरेंस वैल्यू। तो एंड पे हमारे क्या आ जाएगा, सो देन we can say that 108 is 0.90 of the base value. Similarly, 120 by 120 will become 1 and 126 kilovolt will become 1.05 per unit of the base value. Or we can say 90% for this one. 0.9 is equal to 90. If we multiply 0.9 by 100, it will becomes 100, it will become 90%. So either we are going to represent them by percent or by per unit value. Okay, we will look at these two terms in the next slide, that why we are using them in per unit or in percent system. Similarly, 120 kilovolt will become 100 and 126 kilovolt can be represented by 105% of the base value, which is 120 kilovolt respectively. Now, what are the advantages of using per unit power system? The first one is, one advantage of the per unit system is that by properly specifying base quantities, so by using per unit quantities, the transformer equivalent circuit can be simplified. This can be a significant advantage even in a power system of moderate size, यानी कोई बहुत बड़े साइज का एक पावर सिस्टम है जिसके अंदर hundreds of transformers may be encountered. ठीक है, रियल सिस्टम के अंदर hundreds of ट्रांसफार्मर्स हो सकते हैं। अगर हम इसका लेआउट डायग्राम बनाएं, सिंगल डायग्राम बनाएं, तो वहां पे so the per unit system allows us to avoid the possibility of making serious calculation errors. ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है कि पावर सिस्टम एनालिसिस में हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि कैलकुलेशन के अंदर एरर्स को हम अवॉइड कर सके व्हेन रेफरिंग क्वांटिटीज फ्रॉम वन साइड ऑफ अ ट्रांसफार्मर टू द अदर। ठीक है, ट्रांसफार्मर आपको पता है कि फॉर एग्जांपल दिस इज primary side of transformer like this, here is secondary side of transformer like this. तो कभी आपसे कहा जाएगा कि रेफरिंग फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, और कभी कहा जाएगा कि रेफरिंग फ्रॉम सेकेंडरी टू प्राइमरी। तो इस तरह अगर लॉट ऑफ ट्रांसफार्मर्स हैं, अदर इक्विपमेंट्स हैं, तो पर यूनिट क्वांटिटीज से उनकी सोल्यूशन इजी हो जाती है, कैलकुलेशन के जो एरर्स हैं वो मिनिमाइज हो सकते हैं। सो another advantage of the per unit system is that the per unit impedances, okay, Z of electrical equipment of similar type, for example ट्रांसफार्मर है और साथ में शंट रिएक्टर्स, तो दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर, इक्विपमेंट्स डिफरेंट है लेकिन कॉन्फ़िगरेशन सेम होने की वजह से दोनों को जो इम्पीडेंसेस है पर यूनिट के सिमिलर टाइप को होते हैं, यूजुअली लाइज विद इन अ नैरो न्यूमेरिकल रेंज। न्यूमेरिकल रेंज जो होते हैं इनका दोनों के इम्पीडेंसेस का, वो ऑलमोस्ट सेम रेंज होते हैं व्हेन द इक्विपमेंट रेटिंग्स आर यूज्ड एज बेस वैल्यूज। ठीक है, इक्विपमेंट की अपनी रेटिंग को अगर एज ए बेस हम यूज करें तो इसका दिस इज द another advantage of using per unit systems. Because of this, per unit impedance data can be checked rapidly for gross errors by someone familiar with per unit quantities. ठीक है, हम पर यूनिट के इम्पीडेंस डेटा को जो कि नेम प्लेट के ऊपर गिवन होती है उसको भी चेक कर सकते हैं टू अवॉइड द एरर्स।
In addition, manufacturers usually specify the impedances of machines and transformers in per unit or percent of name plate ratings. ठीक है, इस वजह से भी इसको यूज़ किया जाता है कि वहाँ पे मैन्युफैक्चरर भी इसी को, आपने कई नेम प्लेट्स देखे होंगे, मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ हैं, वो मैंने यहाँ नहीं लगवाया सका, तो अगर आप बड़े इक्विपमेंट को उठा के देख लें तो वहाँ पे इम्पिडेंसेस वगैरह के वैल्यूज़ पर यूनिट में गिवन होते हैं, 0.9 0.8 इस तरह से। तो ये एक अनदर एडवांटेज ऑफ यूजिंग पर यूनिट सिस्टम है। पर यूनिट क्वांटिटीज आर कैलकुलेटेड इज फॉलोज। फार्मूला क्या होगा? पर यूनिट क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी, यानी जो भी जिस तरह हमने अभी किया, डिवाइड बाय बेस वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, जिस तरह अभी हमने किया। दिस इज द मेन फार्मूला, इसको आपने मेमोराइज करना है, कीप इन माइंड रखना है कि जिस तरह अभी हमारे पास 108 वोल्ट की वैल्यू गिवन थी वोल्टेज की, ठीक है, उन हमसे कहा गया था कि 120 किलो वोल्ट में बेस वैल्यू में आप उसको कन्वर्ट कर लें, तो हमारे पास उसकी वैल्यू 0.9 आई थी। सिमिलरली इस फार्मूले का यही मकसद है कि एक्चुअल वैल्यू जो गिवन है, ठीक है, और साथ में जो बेस वैल्यू आप सेलेक्ट करेंगे उस पर आप उसको डिवाइड करेंगे। where actual quantity is the value of the quantity in actual units, यानी ये तो या तो एम्पेयर्स में होंगी ये यूनिट, या वोल्ट एम्पेयर्स में होंगी, या ओम के अंदर होंगी ये यूनिट्स, ठीक है, एक्चुअल यूनिट्स के अंदर होगी। अगर कहीं मेंशन नहीं है एक्चुअल यूनिट्स लिखा हुआ है तो आप उससे भी पता लगा सकते हैं, यानी ये उसके अंदर एक्चुअल यूनिट्स में होगी। उसके अलावा द बेस वैल्यू हैज द सेम यूनिट्स इज द एक्चुअल क्वांटिटी, thus making the per unit quantity dimensionless। ठीक है, जब भी हम पर यूनिट क्वांटिटी को लिखेंगे, जिस तरह भी 0.9 1.2 1.05 एंड 1 पर यूनिट क्वांटिटी को हमने लिखा, वहाँ पे कोई यूनिट हमने वोल्ट एम्पियर, इम्पिडेंस और एनी अदर यूनिट्स वी हैव नॉट मेंशन्ड बिकॉज द पर यूनिट क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस। ऊपर भी किलो वोल्ट है, ठीक है, नीचे भी किलो वोल्ट है, तो बोथ विल बी कैंसल्ड। So the actual unit will become just a numerical value without any unit. So we can call them a dimensional quantity. Also the base value is always a real number। ठीक है, आपसे कहा जाएगा 120 180 100 80 जितनी भी वोल्टेज की वैल्यू होती है, दैट विल बी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकता, ठीक है, प्लस जे वाली कंडीशन में नहीं हो सकता। देयरफॉर द एक्चुअल the angle of the per unit quantity is the same as the angle of the actual quantity। यानी अगर आपसे ऊपर अगर कहा गया कि 108, ठीक है, और वोल्टेज की एंगल फॉर एग्जांपल 30 डिग्री थी, तो यहाँ पे आपसे बेस वैल्यू आप यू विल पुट 120 इनटू एंगल ऑफ 0 डिग्री। तो मैंने आपसे कहा था कि डिवीजन में पोलर को हम यूज़ करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स को, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये डिवाइड हो जाएंगे, 0.9 आ जाएगी इसकी वैल्यू, और एंगल ऑफ पहले वाले जो एक्चुअल पैरामीटर है वोल्टेज एंगल वही आएगी 30 डिग्री, क्योंकि ज़ीरो एंगल है उस बेस वैल्यू का। Two independent base values can be arbitrarily selected. Arbitrarily means randomly selected at one point in a power system। ठीक है, हम सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी डिफरेंट वैल्यूज को, इंडिपेंडेंट बेस वैल्यूज को यूजुअली, लेकिन सिस्टम कम्प्लेक्स हो जाता है अगर डिफरेंट को यूज करते हैं तो। यूजुअली द बेस वोल्टेज वी बेस एल एन मीन्स लाइन टू न्यूट्रल voltage and base complex power for a single phase of a three-phase system or a single phase system are selected for either a single phase circuit or for one phase of a three-phase circuit। ठीक है, इन दोनों को हम मोस्टली सेलेक्ट करते हैं। यूजुअली जो प्रैक्टिस है पावर सिस्टम एनालिसिस के अंदर या दूसरे कोर्सेज में इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के अंदर, हम जब बेस को सेलेक्ट करते हैं या वोल्टेज, मोस्टली वोल्टेज की वैल्यू होती है, उसके अलावा कम्प्लेक्स पावर की भी वैल्यू हो सकती है। वोल्ट एम्पियर इसका यूनिट होगा, ठीक है, और यहाँ पे या किलो वोल्ट एम्पियर हो जाएगा, ठीक है, किलो वोल्ट एम्पियर मोस्टली किलो में होता है, और यहाँ पे किलो वोल्ट में होगा। अगर किलो वोल्ट में जिस तरह पिछले एग्जाम्पल में 120 किलो वोल्ट था, तो वो दिस वाज द वैल्यू ऑफ वी बेस फ्रॉम लाइन टू न्यूट्रल। अगर वोल्ट एम्पियर में है तो आपको पता होना चाहिए कि दिस इज अ कॉम्प्लेक्स पावर।
Then, in order for electrical laws to be valid in the per unit system, the following relations must be used for other base values. ठीक है, यहाँ पे आप पावर को देख सकते हैं. एक्टिव पावर फॉर बेस वैल्यू फॉर सिंगल फेज इज इक्वल टू reactive power for single phase and complex power base power for single phase. Similarly, I base will be equal to S base divided by V base. Just like V power के अंदर हम क्या करते थे, P is equal to VI और S is equal to VI को हमने पिछले पावर इन थ्री फेज सिस्टम के अंदर पढ़ा है. ठीक है, तो एक्चुअली उल्टा कर लेंगे करंट. तो यहाँ पे चूंकि S की वैल्यू थी, so we can write is base and divided by V base. This is also the most important relation. Impedance या resistance का फार्मूला है, reactance भी लिख सकते हैं. In the basis is equal to, आपको पता है V is equal to IR, or we can write R is equal to V square over, या P is equal to V square over R. उस फार्मूले से आप उसको मैच कर लें. V P is equal to V square over R. You can P is equal to S, तो V square by S हो जाएगा. ठीक है, this one. R अगर in terms of current लिखना चाह रहे हैं तो V base over I base आ जाएगा. Similarly, impedance इसका रिवर्स हो जाएगा, because impedance is equal to 1 over Z base, so it will become conductance. This is admittance, this is conductance, this is susceptance. So हमने इसकी definition को देखा. The ratio of the quantity to its base expressed is a decimal. The ratio in percent is 100 times, यानी 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.9 के साथ, तो 90 आ जाएगा. प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर हमने देखा. Now, both the percent and per unit methods of calculation are simpler and often more informative than the use of actual amperes, ohms and volts. ठीक है, इसलिए हम पर यूनिट के ऊपर जा रहे हैं कि वहाँ इजी हो जाती है कैलकुलेशन कन्वीनियंस के लिए. द पर यूनिट मेथड हैज़ एन एडवांटेज ओवर द परसेंट मेथड. ठीक है, दो मेथड्स हम अभी पढ़ रहे हैं, पी यू पर यूनिट, ठीक है, और परसेंट पी यू पर यूनिट, और उसके बाद परसेंट वाली. तो ये कह रहे हैं कि पर यूनिट को एडवांटेज है परसेंट वाली के ऊपर, यानी दिस वन इज मोर एडवांटेजियस देन दिस वन. क्यों? क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज एक्सप्रेस्ड इन पर यूनिट इज एक्सप्रेस्ड इन पर यूनिट इटसेल्फ. पर यूनिट के अंदर आ गई तो बस वही वैल्यू पर यूनिट के अंदर रहेगी, बट the product of two quantities expressed in percent must be divided by 100 to obtain the result in percent. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हम या तो 100 मल्टीप्लाई कर रहे थे, या अगर परसेंटेज के अंदर आई हुई है तो हम पर यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी डिवीजन ऑफ बाई 100 करेंगे, यानी एक्स्ट्रा एक स्टेप आ जाएगा. इस वजह से पर यूनिट को प्रेफर किया जाता है. नाउ वोल्टेज, करंट, किलो वोल्ट एम्पेयर एंड एम्पीडेंस, ये सारी दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय वी आई. पहले मैंने जिसका जैसे आपको बताया, दिस इज कॉम्प्लेक्स पावर. वोल्ट एम्पेयर जिसका यूनिट है, दिस इज एम्पीडेंस रिप्रेजेंटेड बाय जी, आर सो रिलेटेड दैट सिलेक्शन ऑफ टू बेस वैल्यूज फॉर एनी टू ऑफ देम determines the base values of the remaining two. यानी दो का अगर आपको, देयर आर, वी डिस्कस्ड अबाउट दीज फोर पैरामीटर्स. अगर हमारे पास दो पैरामीटर्स की वैल्यू नोन है तो वी कैन फाइंड द रिमेनिंग टू पैरामीटर वैल्यूज. इफ वी स्पेसिफाई द बेस वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेज, बेस इम्पीडेंस एंड बेस किलो वोल्ट एम्पेयर्स कैन बी डिटरमिन्ड. वही बात हो गई, अगर आपको ये गिवन है वोल्ट एंड करंट, देन वी कैन डिटरमाइन द complex power and impedance values. Usually, base megavolt amperes and base voltage in kilovolts are the unique. पहले भी मैंने पिछली स्लाइड में कहा था
लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि कुछ स्लाइड्स मैंने रेफरेंस बुक से बनाए हैं, तो ये बात रिपीट हो गई कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या चीज़ वोल्ट एम्पेयर्स यूज़ होते हैं, यानी कम्प्लेक्स पावर की बेस वैल्यू गिवन होती है या आपने उसमें कन्वर्ट करना होता है, यानी इसमें, इसके अंदर, या बेस वोल्टेज इन किलो या वी के अंदर, मोस्टली ये गिवन होते हैं। आर द क्वांटिटी सेलेक्टेड टू स्पेसिफाई द बेस फॉर सिंगल फेज सिस्टम्स आर थ्री फेज सिस्टम्स वेयर द टर्म current refers to line current, where the term voltage refers to voltage to neutral, यानी कि अगर वहाँ पे वोल्टेज की बात हो रही तो वो भी एल एन हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। लाइन करंट की बात होती है तो लाइन करंट मीन होता है इसका। वेयर द टर्म किलो वोल्ट एम्पेयर्स रेफर टू किलो वोल्ट एम्पेयर्स पर फेज की बात होती है। द फॉलोइंग फार्मूलाज रिलेट द वेरियस क्वांटिटीज, ठीक है। बेस करंट इज इक्वल टू आई की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो बेस के वी है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एस, बट फॉर सिंगल फेज वन फेज एंड डिवाइड बाई वी, ठीक है। जस्ट लाइक पी की इसकी जगह पी अगर हम लेके पी इज इक्वल टू वी एंड टू आई, so but here V is in also in kilovolt, but for Ln means line to neutral voltage. So here we have seen these formulas of base impedance in ohms in terms of V over I, and here base impedance ohm in terms of V square over S, and here base impedance is equal to, here it was mentioned in mega, so K, if it becomes square, so we will mention it by mega. If you want that volt amperes must be in kilo, in K, then we should mention 10 raised to the power 3 or 1000 here to become it equal. So these are the formulas of impedance to represent indefinite parameters in kilo and mega volt amperes. This is the unit of power, base power in kilowatt for a single phase is equal to base kVA volt ampere. Again here P is equal to S complex power for a single phase, and here base power in megawatt for a single phase is equal to base MVA S for a single phase. So these are the basic equations which we will use further for solving numerical problems. So the per unit impedance of an element, the basic formula is here, is equal to actual impedance divided by base impedance, just like we have seen in the previous figures for voltage 120 kilovolt. Now please try this problem, this example 1.3, and you will understand about per unit quantities in more depth. So now we are going towards the single line diagram or one line diagram. We will call it SLD, single line diagram. The purpose of single line diagram is how to portray the assemblage of transformers, synchronous machines and transmission lines to model a complete system. ठीक है। इसमें हमारे पास पावर सिस्टम के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, जनरेशन हो रही होती है, फिर स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स होते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स होते हैं, उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन होती है। तो सबको अगर हम विद कंप्लीट सर्किटरी रिप्रेजेंट करें तो इट विल बिकम्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट. सो we are using single line diagram to represent all these components of power system network. Since a balanced three-phase system is always solved is a single phase or per phase equivalent circuit composed of one of the three lines and a neutral return path. ठीक है, पहले जिस तरह मैंने कहा था कि अगर बैलेंस थ्री फेज सिस्टम है तो हम एक सिंगल फेज के लिए सॉल्व करते हैं, बाकी फेजेस के लिए भी ऐसे ही होगा। तो यहाँ भी वही बात कही गई है
Often the diagram is simplified further by omitting the completed circuit through the neutral, आगे हम देखेंगे, and by indicating the component parts by standard symbol rather than by their equivalent circuits. ठीक है, उनका इक्विवेलेंट हम फाइंड आउट नहीं करेंगे, प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड सिंबल्स है। सर्किट के अंदर ट्रांसफार्मर को उसी सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, सिंक्रोनस जनरेटर को उसी से, और इस तरह ट्रांसमिशन लाइन को सिंगल लाइन से डायग्राम में, सिंगल लाइन डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। इन SLD अ ट्रांसमिशन लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल लाइन बिटवीन इट्स टू एंड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पे बस लगा हुआ है, जनरेशन बस, यहाँ पे लोड बस, so we will connect it by a straight line representing a transmission line. Such a simplified diagram of an electric system is called a single line or one line diagram. So this is the definition of single line diagram, to simplify all the components and make them a simple circuit. It indicates by a single line and standard symbol how the transmission line and associated apparatus of an electric system are connected together. So this is all about single line or one line diagram. The purpose of the one line diagram is to supply significant information. ठीक है, सिर्फ सारी इक्विपमेंट को लाइन से नहीं करेंगे, स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं और उनको रेटिंग्स उनके लिखने होते हैं, इस वजह से ताकि फिगर से हमें एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, टू सप्लाई सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन ऑफ द सिस्टम इन कॉन्साइज फॉर्म। मकसद क्या है, कॉन्साइज फॉर्म के अंदर आपके पास पूरे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का, पावर सिस्टम नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आ जाए। अच्छा, द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट फीचर्स ऑफ अ सिस्टम वेरीज विद द प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, सारे सर्किट्स एक तरह के नहीं होंगे, डिपेंड करता है सर्किट की कंपोजिशन के ऊपर, सर्किट के कंपोनेंट्स के ऊपर। ठीक है, इस वजह से ये कह रहे हैं कि वेरीज विद प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन, कि आप कौन से प्रॉब्लम्स के लिए सिंगल लाइन डायग्राम को अडॉप्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल पावर फ्लो स्टडीज़ के लिए कर रहे हैं, या इसके अलावा फॉल्ट्स आइडेंटिफिकेशन के लिए कर रहे हैं, तो इस वजह से वेरी करता है जिस प्रॉब्लम को आप कंसीडर कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस द लोकेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर्स एंड रिलेज इज अनइम्पॉर्टेंट इन मेकिंग अ लोड स्टडी। ठीक है, अब पावर फ्लो स्टडी या लोड स्टडी को हम सिर्फ कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें सर्किट ब्रेकर अगर एक्चुअल सर्किट्स के अंदर है भी हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें नहीं चाहिए ये और रिलेज को भी शो नहीं करेंगे, फ्यूजेस को भी शो नहीं करेंगे। ऑल दीज आर अनइम्पॉर्टेंट फॉर सच काइंड ऑफ स्टडीज। ऑन द अदर हैंड, determination of the stability of a system under transient conditions resulting from a fault depends on the speed with which relays and circuit breakers operate to isolate the faulted part of the system। ठीक है, अब ये एक अलग सर्किट है। जिस तरह कहते हैं कि अंडर ट्रांजिएंट कंडीशंस कोई फॉल्ट आ जाती है, पूरे सिस्टम के अंदर ट्रांजिएंट्स आ जाते हैं, तो अगर हम ऐसे सर्किट को स्टडी कर रहे हैं, सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ पे सर्किट ब्रेकर्स हो गए, रिलेज हो गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उनके बगैर सर्किट कंसीडर ही नहीं होगा। तो वहाँ पे जिस तरह ऊपर वाले सर्किट में ज़रूरत ही नहीं थी, यहाँ पे बहुत एक्सट्रीमली नीडेड है। इस वजह से डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि कौन सा सिचुएशन है, कौन से एलिमेंट्स हमने शो करने हैं। देयरफॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्किट ब्रेकर्स मे बी ऑफ एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस। Sometimes one-line diagrams include information about the current transformer and potential transformers which connect the relays to the system installed for metering. For example, आप मीटरिंग पर्पस के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ पे करंट और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का होना बहुत ज़रूरी है, रिप्रेजेंट करना फिगर के अंदर। ठीक है, ऑल दो ऊपर वाली जो हमने दो केसेस देखे, कोई लोड स्टडी है या ट्रांजिएंट स्टडी है, वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मीटरिंग की स्टडी है तो वहाँ पे करंट सीटीज जो जिसे हम कहते हैं करंट ट्रांसफार्मर, और पीटीज होते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, तो इन दोनों को लगाना ज़रूरी होता है। सो द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ANSI and the Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE have published a set of standards। अब इनको देखें कि मशीन है या रोटेटिंग आर्मेचर है, जिस तरह सिंक्रोनस जनरेटर्स हो गए, मशीन हो गए, मोटर्स हो गए, उनको हम सिर्फ सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है,
सिंबल यही है। और 2 वाइंडिंग पावर ट्रांसफार्मर है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए दिस इज अ ट्रांसफार्मर विद 1 वाइंडिंग हेयर एंड 1 वाइंडिंग हेयर। अगेन अगर 3 वाइंडिंग पावर ट्रांसफार्मर है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम 1 प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी वाइंडिंग हम कह सकते हैं उनको। उसके अलावा फ्यूज को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस सिंबल से, रेक्टेंगल है, उसके कॉर्नर पे 2 लाइंस लगी हुई है। करंट ट्रांसफार्मर को हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। पावर सर्किट ब्रेकर, ऑयल और अदर लिक्विड सर्किट ब्रेकर जो है वो उसको सिर्फ इस बॉक्स से शो करेंगे, लेकिन एयर वाले को, एयर सर्किट ब्रेकर को हम इस तरह शो करेंगे। आपको ज़रूरत नहीं है मेमोराइज करना इन सब को, जहाँ नीडेड होते हैं, जहाँ सर्किट बने हुए होंगे आपको फ़ौरन पता चलेगा कि व्हाट दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स। 3 phase 3 wire delta connection is like this because there is no neutral point in delta connection. 3 phase Y neutral ungrounded will be represented by this, and 3 phase Y with neutral grounded, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस न्यूट्रल पॉइंट को ग्राउंड किया, दिस इज अ सिंबल फॉर ग्राउंड, ठीक है। तो इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या पावर ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं उसको, या तो इस तरह या फिर 2 वाइंडिंग से हम रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन 2 वाइंडिंग वाली थोड़ी सी डिफरेंट है इसके, क्योंकि ये मेजरमेंट के लिए यूज़ होते हैं, आपको पता है पीटीज और सीटीज जो है ये मेजरमेंट के लिए है। और यहाँ पे पावर ट्रांसफार्मर, ये 2 ऊपर वाले 3 वाइंडिंग 2 वाइंडिंग, ये स्टेप अप स्टेप डाउन के लिए यूज़ होते हैं मेनली। एमीटर एंड वोल्ट मीटर, उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए से इन सीरीज एंड सिमिलरली वी इन सीरीज विद द सर्किट। So a simpler power system single line diagram is shown in the figure। इस फिगर को आप देखें, ये हमारे पास एक फिगर है। 2 जनरेटर्स, यहाँ पे 2 बसेस हैं, ठीक है। 1 बस इज हेयर, सेकंड बस इज हेयर। 2 जनरेटर्स आर हेयर। जनरेटर नंबर 1, जनरेटर नंबर 2, 1 ग्राउंडेड थ्रू अ रिएक्टर, ठीक है। ये ग्राउंड हो चुका है लेकिन दिस इज अ रिएक्टर सिंबल, ठीक है। एंड 1 थ्रू अ रेजिस्टर, this is grounded through a resistor। generator number 2 connected to a bus, इस बस से कनेक्टेड है, ठीक है। this is a load bus through a step up transformer, this is a step up transformer। here is Y connected with solidly neutral grounded, here is Y connected solidly neutral grounded to a transmission line के साथ कनेक्ट है। another generator grounded through a reactor, here generator number 3 grounded through a reactor is connected to a bus, इस लोड बस के साथ ये भी कनेक्ट है, and through a transformer to the opposite end of the transmission। here is again transformer number 2, here is delta connected, here is Y connected, and here is a load B is connected, and here a load A is connected। so a load is connected to each bus, ratings of each component must also be given। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सर्किट है। यहाँ पे चूंकि हम किसी खास प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे, न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर रहे, इस वजह से यहाँ पे हमने रेटिंग्स रिप्रेजेंट नहीं किए। लेकिन इफ़ नीडेड देयर मस्ट बी रेटिंग्स। फॉर एग्जांपल मैं कह दूँ कि दिस इज़ 132 kV टू 330 kV स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो सिंपली इसको इसी तरह लिखा जाएगा, ठीक है। तो यू शुड मेंशन द प्रॉपर रेटिंग of each component। So today's lecture is covered from the textbook and also from a reference book। From this reference book we have only covered per unit topic, per unit representation, per unit quantities। तो इस बुक को भी अगर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा ऑनलाइन PDF। अगर नहीं मिल रहा तो काइंडली मुझे टेक्स्ट कर दें या ऑनलाइन सेशन के अंदर बता दें, मैं आपको PDF भेज दूंगा। इसी के अंदर में से एक टॉपिक ये वाला कवर कर लें। And thank you very much all of you for listening the lecture।